Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, we start with the unit 2, chapter 2. Okay, in unit 2 there will be two chapters. First chapter that we studied, second law of thermodynamics. The second chapter is ideal gas properties and processes. Okay, in chapter ideal gas properties and processes we studied different terms like what is ideal gas. Okay, what is ideal gas, what is gases laws, that is Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. After that we studied laws, we studied different processes like constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, constant heat process. After that we studied polytropic process. Okay, in this process we calculate different terms like heat, entropy, internal energy, enthalpy. Okay, these are the calculation. In these topics we studied ideal gas definition, gas laws, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro's law, ideal gas processes on PV and TS diagram, constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, adiabatic process, polytropic process, throttling process, free expansion process. In this process which calculate heat transfer, work done, internal energy, enthalpy and entropy. Okay, this is the chapter 2 that we'll study. Okay, now we start with the terms, basic term, that is a pressure. As we know that pressure is equal to force upon area. Force unit is Newton and area unit is a meter square. So pressure is equal to Newton per meter square, that is a Pascal. Okay, that is unit is a Pascal. Pressure is Newton per meter square, that is Pascal, as we know that. Okay, now we start with the terms. What is perfect gas? Okay, so what is a perfect gas? That is a ideal gas. Okay, what is ideal gas? The gas which obeys all gaseous laws is called as a ideal gas. मीन्स वॉट, द जो भी आपका गैस होगा, ओके, कंसिडर करते एयर होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा, ये डिफरेंट गैसेस है. अगर वो गैसेस आपके गैस लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो वो गैसेस क्या होगी? आपके आइडियल गैस. ओके, और एक डेफिनेशन है आइडियल गैसेस की, द गैसेस, the behavior of all gases at all pressure and temperature are same, that gases is called as ideal gases. means what? अगर आपने कंसिडर कर दिया एयर, ओके, तो एयर at all temperature and at all pressure air behaves same, then the air is an ideal gas. Okay, तो ideal gas means what? The gas which obeys all gaseous laws, that is called as a ideal gas. Or the gas, the behavior of gas at all pressure and temperature are same, that is called as a ideal gas और परफेक्ट गैस. ओके, तो आइडियल गैस की डेफिनेशन आपको समझ गए. जो गैस है जो आपका बिहेव कर रहा है एट ऑल प्रेशर और टेम्परेचर को सेम, और जो फॉलो कर रहा है ऑल गैसियस लॉस, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस. ओके, अभी नॉर्मली क्या है, गैस में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ रहती है? जनरली गैस में रहता है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द गैस. ओके, जनरली ये तीन क्या है? गैसेस के वेरिएबल्स है. मतलब गैस डिफाइन करते हैं तो हम गैस किसे डिफाइन करते हैं? तो गैस एक कंटेनर में है जिसका वॉल्यूम V है, उसका प्रेशर P है और जो टेम्परेचर ऑफ द गैस T है. ओके, सो तीन प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट मास, और टेम्परेचर. ओके, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर, PVT. ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी डिफाइन फॉर द गैस. ओके, जनरली क्या है, मोलेकुलर अट्रैक्शन गैस का कैसा रहता है? लोअर रहता है. जैसे कि सॉलिड में मोलेकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, लिक्विड में मीडियम रहता है, और गैस में क्या रहता है? वेरी लो रहता है. ओके, तो जनरली गैस के तीन प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्री वेरिएबल्स, ओके, देयर आर थ्री लॉज. ओके, जनरली आपको एक इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है, प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू m, that is mass of the gas, into r into t. okay, that is PV equal to mRT. ध्यान में रखिए इक्वेशन, PV equal to mRT. प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस
into R. R means gas constant. R means gas constant. Capital R, gas constant into temperature. That is equation is equal to PV equal to MRT. हे इक्वेशन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन क्या है, आपको 2 मिनट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या करना है आपको. ओके, तो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कौन सा वाला है, मैं दिखाता हूँ अभी. 2 मिनट. ओके, तो ये वाला इक्वेशन बॉक्स में जो दिखाया है आपको, पी वी इक्वल टू एम आर टी. ओके, यहाँ पे जो पी है वो क्या है, प्रेशर है. ओके, प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम, पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जो वी है वो क्या है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी. ओके, तो वी है जो है मीटर क्यूब पर केजी है. एम जो है वो क्या है आपका, मास ऑफ द गैस, दैट इज अ केजी. और जो आर है वो आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट. क्या है आपका आर, गैस कांस्टेंट. उसका यूनिट जो है वो यूनिट है जूल पर केजी केल्विन. क्या है, जूल पर केजी केल्विन. और टी है वो जो है वो किसमें है आपका, टेम्परेचर, दैट इज उस किस में है, केल्विन में. ओके, तो ये इक्वेशन ध्यान में रखना है. यहाँ पे जो है प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों क्या है, गैस के वेरिएबल्स है. लेकिन मास ऑफ द गैस और गैस कांस्टेंट, ये दोनों टर्म्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है. बराबर है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स आपके 3 हो गए, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर. बराबर है, और एम आर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा. सो इक्वेशन क्या होगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी. बराबर है, मतलब इक्वेशन क्या होगा आपका, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, पी वी इक्वल टू सी टी. बराबर है, मतलब 3 वेरिएबल हो गए, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर. ओके, अभी हम देखने वाले गैसियस लॉज. ओके, जनरली आपके यहाँ पे 3 लॉज है. ओके, 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लुसेक लॉ. कौन से लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लुसेक लॉ. ओके, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है और चार्ल्स लॉ में क्या होता है और गे लुसेक लॉ में क्या होता है. अभी क्या है, आपके पास 3 वेरिएबल है. एक तो प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है और टेम्परेचर वेरिएबल है. ओके ओके, तो उसमें से क्या करना है, गैसियस लॉज में एक एक वेरिएबल को क्या करना है, कांस्टेंट करना है. और दूसरे जो 2 वेरिएबल बचते हैं उसका क्या करना है, रिलेशन निकालना है. ओके, जैसे कि बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो वेरिएबल कितने बचे, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या है आपके पास, पी वी इक्वल टू एम आर टी. ओके, सो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी. अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. बराबर है, मतलब क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बराबर है, तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल है. अभी एक एक वेरिएबल कांस्टेंट करना है. तो अकॉर्डिंग टू लॉज, ओके, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर. बॉयल्स मतलब बॉइलिंग, मतलब टेम्परेचर. ओके, कंसिडर कर दो आप, बॉयल्स मतलब क्या है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इक्वेशन आ गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बराबर है, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मीन्स, अगर मैं जो प्रोपोर्शनल साइन निकालना है तो वॉल्यूम इधर लिया तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन टी इज कांस्टेंट. सो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज पी वी इंटू इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा. ओके, अगर मैंने कंसिडर कर दी प्रोसेस 1 to 2, सो मेरा इक्वेशन क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. बराबर है, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है स्टेट 1 के लिए,
सिमिलरली स्टेट 2 के लिए भी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली स्टेट 3 के लिए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 ओके इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ओके तो बॉयल्स लॉ समझ गए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस is inversely proportional to volume of the gas. So pressure is inversely proportional to volume. Okay, means what? Inversely proportional means what? As pressure increases, volume decreases. As a volume increases, pressure decreases because inversely, that is opposite. मत मीन्स आपकी एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो इक्वेशन क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका कम होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप कॉम्प्रेशन प्रोसेस में, जब भी हम गैस को कंप्रेस करते हैं मतलब क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। वॉल्यूम को डिक्रीज होता है लेकिन क्या होता है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बराबर है। मतलब क्या हो गया आपका, वो कांस्टेंट उसमें क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज अ कॉम्प्रेशन। ओके सिमिलरली एक्सपांशन में क्या होता है, एक्सपांशन में क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया, आपके बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, आपका कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज अ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके तो समझ गए आपके बॉयल्स लॉ। ओके अभी यहाँ पे मैंने डायग्राम के हिसाब से दिखाया है। ओके यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम है। एज अ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो पीवी डायग्राम देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे क्या है, अपना प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। सेकंड पॉइंट पे क्या होगा दिया है मैंने, जहाँ पे मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। सो मेरा ग्राफ 1 to 2 आ जाएगा, बराबर है। सिमिलरली प्रेशर इंटू टेम्परेचर डायग्राम, अभी यहाँ पे देखो प्रेशर इंटू टेम्परेचर डायग्राम। बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, मेरा प्रेशर अगर चेंज भी हो गया लेकिन टेम्परेचर क्या रहने वाला है, मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम दिखाया है, प्रेशर इंक्रीज किया है 1 to 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो T1 इक्वल टू क्या होगा, T2। सो टी वाला जो डायग्राम है एक्स एक्सिस, वहाँ पे मुझे एक ही पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि पॉइंट 1 का और पॉइंट 2 का टेम्परेचर क्या है, सेम है, बराबर है। सो प्रेशर चेंजेस लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, जो डायग्राम मैंने दिखाई है। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के हिसाब से डायग्राम निकालूंगा, टेम्परेचर में तो मेरा सेम है, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, वॉल्यूम चेंज होने वाला है। सो टेम्परेचर मुझे एक ही पॉइंट पे दोनों मिलने वाले हैं और वॉल्यूम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है। ओके तो ये हो गई मेरी पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम और टीवी डायग्राम। तो ये अपना हो गया बॉयल्स लॉ। ओके तो आपने आज क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ गया। अभी नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम, चार्ल्स लॉ। ओके अभी बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अभी है मेरा चार्ल्स लॉ। ओके ध्यान में रखना है आपको, कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। अभी चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कितने हैं, 3 है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बराबर है। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, अभी प्रेशर कांस्टेंट रह गया, बचा क्या फिर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अपना इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, बराबर है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर volume of the gas is directly proportional to temperature of the gas. Okay so volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas. Charles law. Okay तो Charles law क्या बोलता है, it states that the volume of given mass of perfect gas varies directly proportional to its absolute temperature at constant pressure. Okay according to Charles law, at constant pressure absolute volume of the gas is directly proportional to absolute temperature of the gas.
सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बराबर है। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कांस्टेंट लिखूंगा। सो V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, बराबर है। तो क्या आएगा, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बराबर है। अभी प्रोसेस में 1 to 2 लूंगा तो क्या इक्वेशन क्या आएगा, V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 बाई T2, बराबर है। मतलब स्टेट 1 का V बाई टू इज इक्वल टू स्टेट 2 का V बाई टू, मतलब V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अगर मैंने डिफरेंट प्रोसेस लो ले तो इक्वेशन आएगा V1 बाई T2 T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। तो चार्ल्स लॉ। सिमिलरली बॉयल्स लॉ में क्या था, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए इक्वेशन था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये क्या हो गया, चार्ल्स लॉ। ओके, तो चार्ल्स लॉ में मैंने डायग्राम्स निकाली। यहाँ पे क्या है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका टेम्परेचर भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एज अ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। लेकिन प्रेशर क्या होगा इसमें आपका, कांस्टेंट होगा। अभी फर्स्ट मैंने जो डायग्राम निकाली है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बराबर है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर आपका एक ही पॉइंट आने वाला है, लेकिन वॉल्यूम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम है प्रेशर इनटू टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होने वाला है। सो एक ही लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। ओके, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज अ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक देखो, एक कर्व सॉरी एक आपको एक लाइन दी है, स्टेप लाइन दी है, जहाँ पे आपका वॉल्यूम जैसे बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 to 2। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द गे लुसैक लॉ। ओके, सॉरी गे लुसैक लॉ बच गया कहीं पे। ओके, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, अभी हमारा है गे लुसैक लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। अभी गे लुसैक लॉ। ओके, कितने वेरिएबल है, 3 है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ओके, फर्स्ट तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया बॉयल्स लॉ में, सेकंड प्रेशर कांस्टेंट हो गया चार्ल्स लॉ में, अभी बचा क्या है, वॉल्यूम। ओके, तो थर्ड लॉ जो है वो कौन सा है, गे लुसैक लॉ। कौन सा लॉ, गे लुसैक लॉ। ओके, साइंटिस्ट है गे लुसैक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गे लुसैक लॉ क्या बचा है कांस्टेंट अपना, वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन क्या बचा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी है, बराबर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो रहा है, वॉल्यूम। सो क्या बचा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गे लुसैक लॉ, एट constant volume absolute pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature of the gas. Okay, so pressure is directly proportional to क्या होगा आपका, temperature. Okay, so according to the Gay-Lussac law, pressure is directly proportional to temperature. So pressure is equal to क्या होगा, proportionality साइन करने के लिए मुझे pressure is equal to constant into temperature. सो प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा, बराबर है। प्रेशर बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं डिफरेंट प्रोसेस को लूंगा तो इक्वेशन क्या आएगा, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 इज इक्वल टू P3 बाय T3 इक्वल टू क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। मतलब प्रेशर बाय टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो 3 लॉज हो गए मेरे। ओके, अभी इसमें डायग्राम देख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स व्हाट, एज अ प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है। सो फर्स्ट डायग्राम मैंने प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर दी, तो मेरा इसमें क्या होगा, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रेशर होगा। ओके, तो मेरी वॉल्यूम का जो पॉइंट होगा एक ही रहेगा, लेकिन प्रेशर के पॉइंट्स क्या हो गए, 2 हो गए।
यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पहली प्रेशर इनटू वॉल्यूम की। ओके, यहाँ पे मेरा प्रेशर है जो कि अलग है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा सेम ही रह गया है, बराबर है। सेकेंड डायग्राम है प्रेशर इनटू टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एज अ प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो मेरी डायग्राम क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, जो थर्ड डायग्राम है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, वहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। वॉल्यूम का एक ही पॉइंट होगा लेकिन टेम्परेचर के 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये क्या हो गया मुझे, पीवी, पीटी एंड टीवी डायग्राम हो गई, बराबर है। तो मुझे 3 लॉज है और 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ आ जाएगा, बॉयल्स लॉ, बराबर है। तो मेरा इक्वेशन आएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर। सेकंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में मेरा कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। ओके, और उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, थर्ड जो होगा मेरा गे लुसेक लॉ, उसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, 3 लॉज हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लुसेक लॉ। ओके, अभी यहाँ पे मैंने कंक्लूजन निकाला है। ओके, तो 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ। अभी ध्यान में कैसे रखना है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है BGS, भारत गैस कंपनी। क्या लिखा है, भारत गैस कंपनी। ओके, सो भारत का इनिशियल क्या आता है, बी मीन्स बॉयल्स लॉ। ओके, गैस में जी जो इनिशियल आता है, जी मतलब क्या हो गया, गे लुसेक लॉ, बराबर है। कंपनी का इनिशियल क्या आता है, सी मीन्स चार्ल्स लॉ। सो भारत गैस कंपनी, बॉयल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, अभी बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट। गे लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, V। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P, बराबर। तो ये मेरे आ गए बॉयल्स लॉ, मतलब भारत गैस कंपनी। ओके, भारत मीन्स बॉयल्स, गैस मीन्स गे लुसेक लॉ और कंपनी मीन्स चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू गैस लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आ गया BGC, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है अपना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, बराबर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू गे लुसेक लॉ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा, टेम्परेचर है। ओके, तो आपको ये 3 इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसेक लॉ। बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, गे लुसेक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे लुसेक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा यहाँ पे, टेम्परेचर होगा। तो ये 3 लॉ आपको प्रॉपरली याद रखने हैं। ओके, नॉर्मली डेफिनेशन क्या बताया मैंने आइडियल गैसेस का, द गैस विच ओबेज ऑल गैसेस लॉज। कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ और एक लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। ओके, देन दैट गैसेस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। और एक डेफिनेशन बताई थी, द बिहेवियर ऑफ गैस एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, दैट गैसेस इज कॉल्ड एज अ आइडियल गैस। ओके, तो अभी एक लॉ बचा है, एवोगैड्रोस लॉ। ओके, तो यहाँ पे दिया नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ एवोगैड्रोस लॉ क्या है। ओके, 3 लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे लुसेक लॉ हो गया। अभी जो चौथा लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। मतलब कौन सा है लॉ, फोर्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अभी वो लॉ क्या बताता है, अगर मैंने 2 डिफरेंट गैसेस लिए, क्या लिए मैंने, 2 डिफरेंट गैसेस लिए। ओके, अभी 2 डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है। ओके, मैंने क्या बताया, 2 डिफरेंट गैसेस लिए, 2 कंटेनर में भर दिए। ओके, वो दोनों कंटेनर में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है सेम है, प्रेशर ऑफ गैस सेम है और टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है, सेम है। देन दोनों गैस के जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होंगे
वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये क्या बताता है, एवोगैड्रोस लॉ। मतलब क्या है, अगर मैंने दो डिफरेंट गैसेस लिए हैं एट सेम कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किए, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर सेम। क्या होगा, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस क्या होंगे, सेम होंगे। वो क्या होगा, अपना एवोगैड्रोस लॉ। ओके, तो आप समझ गए एवोगैड्रोस लॉ क्या है। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ different ideal gases equal volume of different ideal gases at same temperature and pressure contain same number of molecule। okay, मतलब क्या है, different volume constant volume of different ideal gases at same pressure and same temperature contain same number of molecule। okay, तो अभी हमने गैसियस लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, और उसके बाद मैंने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ। ओके, तो ये क्या हो गया, अपने 4 गैस लॉ हो गए, बराबर है। अभी मैं एक इक्वेशन तैयार करने वाला हूँ, जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे 3 रिलेशन लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। अभी ये दो इक्वेशंस को क्या करता हूँ मैं, कंबाइन कर देता हूँ, बराबर है। यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बराबर है। सो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन क्या आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब पी वी बाई टी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर है। तो ये क्या होगा, जनरल गैस इक्वेशन का एक आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू क्या आएगा, पी टू वी टू बाई टी टू। ओके, तो ये क्या होगा, मुझे सब गैस के लिए ये फॉलो हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑल प्रोसेस के लिए मेरा इक्वेशन क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट एट ऑल इक्वेशन, ऑल प्रोसेसेस के लिए। सो पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ओके, तो ये हो गया। ओके, जनरल इक्वेशन क्या हो गया मेरा, पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी वी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट इंटू टी, बराबर है। पी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी। ओके, अभी जो वी है मतलब वॉल्यूम है, बराबर है, तो मैंने उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी। ओके, सो कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, सो गैस कॉन्स्टेंट ले लिया, गैस कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो गया, आर। ओके, आर जो है कैपिटल आर, उसको हम बोलते हैं गैस कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो वी है वो क्या है, अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, सो इक्वेशन मैंने लिख दिया, पी वी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, तो वहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ओके, तो वहाँ पे पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन क्या आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मास इज इक्वल टू आर इंटू टी। सो इक्वेशन क्या आएगा, पी वी इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पे जो पी है वो पी क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे जो वी है वो क्या है, वॉल्यूम है। एम है, एम मतलब क्या है, मास ऑफ द गैस। और जो आर है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और टी है क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, तो मैंने जो गैस लिया है उस हिसाब से मेरा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और गैस कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। ओके, जो भी गैसेस है उसका गैस कांस्टेंट क्या रहता है, एक वैल्यू रहती है। अगर मैंने कंसिडर कर दिया एयर एज अ गैस, तो गैस कांस्टेंट आर, आर की जो वैल्यू है, ओके, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस इंटू आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर है वो किस में है, पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम वी जो है मीटर क्यूब में है। ओके, यम मास दैट इज केजी में है। और जो आर है, आर क्या है, अपना गैस कांस्टेंट।
जो गैस कांस्टेंट हम मेजर करते हैं जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। और टी जो है वो क्या है अपना टेम्परेचर, जो कि हम किस में मेजर करते हैं केल्विन में। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा mRT। दिस इज अ जनरल गैस इक्वेशन। क्या है वो आपका जनरल गैस इक्वेशन, आपको हमेशा वो ध्यान में रखना है। ओके अगर मेरा बॉयल्स लॉ होगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखो mR मतलब एक कांस्टेंट है। ओके तो वो कांस्टेंट हो गया, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी। ओके बॉयल्स लॉ होगा तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर चार्ल्स लॉ होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर गे लुसेक लॉ होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस लेना है। सो जनरल इक्वेशन क्या होगा, PV बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आर, आर जो कि क्या है अपना गैस कांस्टेंट है। ओके तो गैस कांस्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके तो बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके थैंक यू।